Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Engineer Azhar Badsha, back with another building construction lecture, project management specialists. Without further ado, let's start it. Question 3. The wedge shape bricks form in arch rings are called. So that's called as woosers. Woosers. This is wedge shape bricks, right? So this wedge shape bricks is called woosers, but in arches. Wooser. A wooser is a wedge-shaped element, typically a stone, which is used in building an arch or vault. Right? As come in front of you. So a wooser is a wedge-shaped element. These are every element is wedge-shaped element. Wedge shape. This is wedge shape. This is wedge shape. Each stone is a wedge shape element. Typically stone. That may be a stone. Typically a stone. It might be bricks. Although each unit in an arch or vault is a voicer. Every unit, this unit, this unit, this, every unit is a voicer. This is springing line. The top stone is known as the top voicer. Our stone is known as keystone. Two units are of distinct functional importance, the keystone and the springer. The keystone is a center stone or masonry unit at the apex of an arch. The arch top is actually known as apex. Okay? So the top stone is actually the apex. For example, if this is an arch, and if this is a springing line, so this top portion is actually apex. The top portion is the apex, and this is keystone. It's a center stone. Basically, the keystone is a center stone. This is the center stone. The keystone is the top stone or masonry unit at the apex of an arch. So this is at the apex, right? The keystone is also at the apex of an arch, or masonry unit at the apex of an arch, right? It's also called the masonry unit at the apex of an arch. So this is the top of this keystone is the apex of an arch. Basically, arches are an architecture and an opening and a structure. You can see it's a clearly opening. This is called springing line, and from springing line to the keystone bottom is called rise. It's also called the height of the arch. This is keystone, this is wowzer, each unit is a wowzer, right? हर एक यूनिट वॉजर है हमारे साथ. वॉजर का टॉप एक्स्ट्रा डोज है हमारे साथ. The top portion of the wowzer is called extra dose. So this is an arch. So wowzers are these wedge-shaped stones. This is keystone. This is wowzer. Each unit in this springer, that's a springer, as in wowzer. This is impost. Impost. This is a springing line. This is rise. This is the top is extra dose. This bottom is intra dose.
the inner part of the washer is intrados. This is Springer line. This is Springer line. This is Springer line, right? This is hunch. This is intrados. That is a crown. So that's what it's all about. That's springing line. So arch is opening in a structure that is curved in the top. You can see it's a curve in the top. It's a curved in the top. That is a crown. The bottom top of the keystone is known as the crown. And from the springing line to the crown, that height is known as rise. And this is a hunch. From this distance to this distance is known as the hunch, right? Basically, arches are also designed to distribute weight. ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? ये स्प्रिंगर है, ये वॉशर है, ये क्राउन है, क्राउन ये है, ये कीस्टोन है, क्राउन इस टॉप को कहते हैं, ठीक है? ये राइज है, ये स्पैन है, स्प्रिंग लाइन है, ये हंच है यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, ये स्प्रिंग पोस्ट है, ये स्टाइल्ड आर्च है, ये गोथिक आर्च है, ये टूडर आर्च है, ये मोरिश आर्च है, ये ट्रीफॉइड आर्च है, ये ओगी आर्च है. तो आर्चेस की डिफरेंट किस्में हैं, अक़साम हैं. Arches can support a very large mass placed on top of them. यानी इसके ऊपर ये आर्च है ना, ये कर्व्ड हुआ है टॉप पे, इसके ऊपर can support a very large mass, काफ़ी वजन को ये सपोर्ट करता है, ठीक है? That is why we use in a civil engineering structures and architectural structures, right? And that's the ornamental works and civil engineering construction. Pointed arch, ये ogival arch होता है या Gothic arch होता है, is an arch with a pointed crown whose two curving sides meet at a relatively sharp angle at top of the arch. This architecture element was particularly important in Gothic architecture. So, pointed arch is also called as ogival arch. Ogival arch. This is a pointed arch, right? This is the pointed portion. It's also called as Gothic arch. This is a pointed arch, or also called Gothic arch or ogival arch. You can see this is having a pointed crown with a pointed crown. If I'm talking about its crown, so this is basically the pointed crown, right? This portion is called pointed portion. Whose two curving sides? This is a curve, one curving one side. This is, and this is the curving another side. Meet. This is the meeting point, and this is the crown. This is the crown. Meet a relatively sharp angle. This angle is a sharp angle at the top of the arch. So this is the curving, two curving sides meet relatively a sharp angle. So this is a sharp angle. It must be, it should have been like in this way. इसको इस तरह होना चाहिए था normally, लेकिन ये deviate हुआ है. कितना deviate हुआ है? यहाँ पे sharply deviate हुआ है. Whose two curving sides meet relatively a sharp angle at top of the arch, which is the keystone. But did you find the keystone? Write it in the comment box. The pointed arch is important in
Gothic architecture. If interviewer can ask me, I will say it's important in Gothic architecture and anywhere in the world. Well, this is Gothic architecture. This is ogival arch. This is Gothic arch. This is pointed arch. Let's come to the question. A pointed arch which forms isosceles or equilateral triangle. This is isosceles triangle, right? Okay. Also known as equilateral triangle, whose all sides are equal. Isosceles triangle has both two equal sides and two equal angles, right? That's the isosceles triangle. In geometry, an isosceles triangle is a triangle that has two sides of equal length. जिसमें दो sides equal length के होते हैं. Sometimes it's specified as having exactly two sides of equal length. कभी कभार इसको हम exactly इस तरह specify करते हैं कि इसके दो sides बिल्कुल बराबर length के होते हैं. And sometimes it's having at least two sides of equal length. The later version, thus including the equilateral triangle, is a special case. इसका area है 1 by 2 multiplied by base multiplied by height per meter, 2 multiplied by length of one of the long sides plus base of the isosceles triangle. There's a number of vertices 3, number of edges 3, right? In geometry, an equilateral triangle is a triangle in which all three sides have the same length. Very simple. So a pointed arch which form isosceles or equilateral triangle is generally known as three-centered arch, two-centered arch, lancet arch, bullseye arch. The correct answer is lancet arch. Lancet arch. The lancet arch is a variety of pointed arch. So the lancet arch is a variety of pointed arch in which each of the arcs or curves of the arch have a radius longer than the width of the arch. So this is the pointed arch is also known as a lancet arch, and this is a variety of the pointed arch. The lancet arch is the variety of the pointed arch. This is the variety of the pointed arch. There is a variety of the pointed arch. The pointed arch is not a one type. There is a variety inside the pointed arch. So lancet arch is a variety of a pointed arch in which each of the arcs or curves of the arch. This is the arc from this crown top. This is the crown top. This is the crown bottom. Right? This is the rise. This is the rise. The top of the springing line. This is a springing line. Okay? From top of the springing line to the top of the crown bottom is the arch, is rise of the arch or height of the arch. So in which each of the arcs, this is arc, right? Each of the arc, this each of the arc, this each, are each of the curves. Let me show you. Each of the curves, this curve, each of the curve, this curve of the arch have radius longer than the width of the arch. This radius will be longer than this radius, right? This full is diameter, but this radius is longer than this radius. Okay, now the point 2 is the lancet arch is a variety of point arch in which each of the arcs or curves of the arch have radius longer than the width of the arch. The point, it takes its name from being shaped like the tip of a lance. The lancet window
is one of the typical feature of the early English 13th century period in Gothic architecture, right? Basically, it takes its name from being shaped like the tip of a lens. ये अपना नाम लेता है जो इसका शेप है, ठीक है, वो टिप, उसका जो टिप है, मतलब ये जो टिप है, अगर मैं स्पॉटलाइट ऑन करूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये जो टिप है, ठीक है, ये और ये जो टिप है, तो ये अपना नाम इस तरह लेता है, टिप ऑफ अ लेंस। मतलब ये इस टाइप शेप को हम लेंस कहते हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं, इस किस्म की शेप को हम लेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल लेंसेट विंडो है, ये आर्च, ये आर्च हम लेंसेट आर्च हम इस ओपनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ओपनिंग के लिए, जो कि मैसिव लोड को लेता है, टेक्स द मैसिव लोड ऑन टॉप ऑफ दैम। या इसकी जो बिगेस्ट एग्जांपल है, वन ऑफ अ टिपिकल फीचर इज द लेंसेट विंडो, जो कि ये लेंसेट विंडो है। और ये 13th सेंचुरी पीरियड में गोथिक आर्किटेक्चर में ये यूज़ होता है, इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ पे लेंसेट आर्च बहुत मिलने को मिलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटेड आर्च भी कहते हैं, ठीक है, या ओगिवल आर्च या गोथिक आर्च या पॉइंटेड, क्योंकि इसका पॉइंटेड क्राउन होता है, ये जो क्राउन है ये पॉइंटेड क्राउन है, ठीक है। और where two curvy sides meet relatively sharper angle at the top of the arch। अच्छा, ये शेप जो है ये 3 सेंटर्ड आर्च है, ठीक है, 3 सेंटर्ड आर्च है, ओके, या इसकी, या ये 3 सेंटर्ड आर्च है, ये इसकी बिगेस्ट एग्जांपल है। इस टाइप की आर्च जो है इसका 3 सेंटर्ड आर्च, ओके। और इसकी और भी काफ़ी फीचर है, दिस इज का 3 सेंटर्ड आर्च, ओके। ये एक इस तरह का आर्च होता है जिसका इंट्राडोस कर्व जो है, जो अंदर वाला कर्व है, इज डिस्क्राइब फ्रॉम 3 सेंटर, इसके 3 सेंटर्ड होता है, ठीक है, 3 सेंटर्ड, ओके, इसलिए इसको 3 सेंटर्ड आर्च कहते हैं, ठीक है। देखिए 2 सेंटर्ड आर्च जो है ये इस तरह होता है हमारे साथ कि ये इसको डिस्क्राइब, इसका जो इनर इंट्राडोस का जो इनर कर्व है उसको डिस्क्राइब किया जाता है 2 सेंटर के साथ, ठीक है। यानी 2 सेंटर्ड आर्चेस क्या है, पॉइंटेड और गोथिक और लेंसेड आर्चेस आर जनरली कम अंडर दिस टाइप, ठीक है। तो ये इस किस्म के होते हैं। बेसिकली लेंसेड आर्च भी 2 सेंटर्ड आर्च है, जिसके इंट्राडोस को हम क्या करते हैं, उसका जो इनर कर्व है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं 2 सेंटर्ड के साथ। जो इंट्राडोस कर्व है that has been described by 2 centered। तो pointed segmental arch जो है या dome जो है, what is the difference between arch and dome? If you really know that, write down in the comment box। So जो dome है या जो center है, ठीक है, या arch है, what is the difference between that? If you really know that, write down in the comment box what is the difference between dome and arch। तो जो dome है जिसमें हमारे पास curve और rise कम होता है, वो pointed segmental arch होता है, which is also 2 centered arch, alright। But what I'm talking about is the arches। So dome भी इस तरह का होता है और arch भी इस तरह होता है, लेकिन इस पे फ़र्क है, इस फ़र्क को हम पढ़ेंगे। लेकिन जो point जिसमें rise कम होता है स्प्रिंग लाइन से, तो वो क्या होता है, वो मेरे पास बेसिकली पॉइंटेड सेगमेंटल आर्च होता है, ठीक है, या पॉइंटेड सेगमेंटल डोम होता है। ड्रॉप डोम भी इस तरह होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ये भी 2 सेंटर्ड आर्च होता है और पॉइंटेड आर्च होता है, ठीक है। इसका पॉइंट मीन कि जिसका जो क्राउन हो वो पॉइंटेड हो, ठीक है। और ये इक्विलेटरल भी इस तरह है और लेंसेट भी इस तरह है, ठीक है। तो ये 2 सेंटर्ड आर्चेस है। तो लेंसेट आर्च which forms the pointed arch which form an isosceles triangle or equilateral triangle is called lancet arch, which is also 2 centered arch. Equilateral is also 2 centered arch. Drop is also 2 centered arch. Point segment is also 2 centered arch. An arch whose interrose curve is described from 2 centers. Bullseye arch
is an arch is a whole circle. It is like a whole circle forming an opening in a wall, जो कि wall में एक opening बनाता है, mainly for small circular windows, छोटे circular windows के लिए, but also in industrial buildings. इसको हम industrial buildings के लिए भी use करते हैं for the passage of large ducts buildings, जो frame structures है उसमें जो ducts होते हैं उसके लिए भी use करते हैं, जिससे हम किसी pipes को, conduits को हम pass out करते हैं. Built in two parts. The lower arch is set as an inverted opening. जो लोअर आर्च है वो एक तरह का इन्वर्टेड ओपनिंग होता है. अपर आर्च इज टर्न ओवर सेंटर्ड, और जो ऊपर का जो आर्च है वो टर्न हुआ होता है सेंटर पे, यानी एक फुल सर्कल है ये. लेट मी शो यू. दिस इज बुल्स आई विंडो एंड द आर्च is the bull's-eye arch. This arch, right? This is turned over the center like a circle, and this is inverted opening. So this arch is bull's-eye arch, and the window is bull's-eye window, right? Okay, let me show you more. This is another example. This is bull's-eye doorway, and this is bull's-eye arch, but a doorway arch. This is bull's-eye doorway because it's a door made from bull's-eye arch. This portion is not been in connection. Yeah, this portion is not been in connection. So there was been connection. That will be bull's-eye window, and the arch is bull's-eye arch. इसमें लोअर आर्च होता है और टॉप आर्च होता है. लेकिन चूंकि इसमें मेरे साथ, इसको मैं फिक्स कर, चूंकि इसमें मेरे साथ जो लोअर आर्च है, इन्वर्टेड आर्च है, वो इसमें ओपनिंग आई है, तो ये एक डोरवे है और ये ब्रिक से बना है. तो ये बुल्स आई डोरवे आर्च है, ब्रिक आर्च है, ब्रिक आर्किटेक्चर है, ब्रिक डिज़ाइन है, तो इसको मैं बुल्स आई डोरवे ब्रिक आर्च कह सकता हूँ. ठीक है, बुल्स आई डोरवे या बुल्स आई brick arch, right? Arches in the form of masonry arcs. I'm talking about the arches. That is section 1, question 42. So arches in the form of masonry arcs. The arcs will be of masonry arcs struck from more than 4 centers. If that have 4 centers are called which arch? So that's called ogee arch, right? So basically this is the ogee arch, and this is a little bit similar to Lancet arch, but you can see this curve is going in this way, and you know the pointed crown is going pretty steep or high. The slope is pretty steep. You can see. Basically, ogee arch is an arch with a pointed apex formed by the intersection of 2 S-curves, usually confined to decoration and not used in arcade. It is used only in the late Gothic period. Lancet arches were also used in the Gothic period, but it was late at the end of the Gothic period. So it's also having a pointed apex. Yeah, you can see it's a pointed apex. Okay, and if I'm talking about this distance to this distance, that's the rise of the ogee arch, right? And similarly, if you can see, there is this point. If you can see this formed by the intersection of 2 S curves, this is a sort of S. It goes here. This is the first point where it deviates. Its second point deviates, and this is the third point. So
If I can start from this one point, then it's deviate here, and it's deviate here, and then it's deviate here. So four deviations. Similarly, the four from this direction. So formed by an intersection of two S curves, right? Yeah. Usually confined to decorations. We use these sort of arches in decorations. Absolutely, we use in decorations. Not used in arcade arches. So it's not used in arcade arches. Like it's a ogee arch on a facade of Saint Mark's Basilica, Venice, right? Used in the late Gothic period. Okay. So an ogee is decorative line formed by two connected curves. The upper curve is concave or brown inward like the inside of a ball. The lower curve is convex or curved outward like a part of a sphere. When the two curves are linked together, they form an S curve. An ogee arch then uses two ogees to form an arc. They meet at the top of the arc in a point. So an arch with two ogee curves meeting at the apex is called ogee arch. Gothic arches architecture is an architecture style that was prevalent in Europe from the late 12th to the 16th century. Okay. During the high and late Middle Ages, surviving into the 17th and 18th century in some areas, it evolved from Romanesque architecture and was succeeded by Renaissance architecture, right? देखिए गोतक फन तामीर एक तर्ज तामीर है जो यूरोप में 12वीं से 16वीं सदी के आखिर तक। तो गोतिक फन तामीर एक तर्ज की तामीर है। Gothic architecture is an architectural style that was prevalent in the Europe from late 20th to the 16th century, जो यूरोप में 12वीं से 16वीं सदी के आखिर तक during the high and late Middle Ages आला और आखिरी फ़रऊनी वस्ती के दौरान कुछ इलाकों में 17वीं और 18वीं सदी तक जिंदा रहा, surviving into the 17th century in some areas, और इसकी जगह निशासानिया के फन तामीर ने हासिल की। It was evolved from Romanesque architecture and was succeeded by Renaissance architecture. Gothic arches are a pointed arch or ogival arch, or Gothic arch is an arch with a pointed crown whose two curving sides meet relatively sharp angle at the top of the arch. This architectural element was particularly important in Gothic architecture, right? This is Gothic arch, okay. This is another Gothic arch. This is another Gothic arch, okay. This is another Gothic arch, and this is another Gothic arches, right? This is two curved arch, one this curve and one this curve, right? This is fixed arch or two curved. This is also two curved arch, but two hinge is there. This is three hinge arch, one this hinge, one this hinge, one this hinge, three hinge arch, right? This is triangular arch, this is corbelled arch, this is Roman arch, this is horseshoe arch, this is medieval door arch, this is ogee arch, this is refoiler Goth arch, this is round arch, okay? This is one centered arch, which is semicircular arch. One centered arch is semicircular arch, right? This is a segmented arch I have used in a Swath University. The drop Gothic arch is another variation of the Gothic arch, though a much wider version, also called a surf-based arch, and is defined as a pointed arch whose span is larger than its radius.
So it's actually the variation in the of the Gothic arch. Okay. It's a variation of the Gothic arch. ये Gothic arch में variation है, एक दूसरा variation है, though a much wider version. ये एक wider version है. ठीक है, इसको हम सर बेस्ड आर्च भी कहते हैं, इसको हम सर बेस्ड आर्च भी कहते हैं. ठीक है, और इज डिफाइंड एज अ पॉइंटेड आर्च. देखिए सारे पॉइंटेड आर्च है. ठीक है, ये सारे पॉइंटेड आर्च है. या whose span is larger and straight. इसका जो स्पेन है इस आर्क का रेडियस से बड़ा होता है. ये भी ड्रॉप गोथिक आर्च है. ठीक है, ये भी ड्रॉप गोथिक आर्च है. अब इसका जो ये स्पेन, ये जो स्पेन है ये रेडियस से बड़ा होता है. ऑब्वियसली ये कर्व भी रेडियस से बड़ा होगा. ठीक है, ये अब थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हैं. ये मेरे पास जो है ये सेगमेंटल आर्च है, ये सेमी सर्कुलर आर्च है, ये हॉर्स एलॉन आर्च है, ये फिर 2 पॉइंट आर्च है. ये मेरे पास है इक्विलेटरल है, फिर ये 3 पॉइंट आर्च है, ये 4 पॉइंट आर्च है. ठीक है, इसमें ओगी आता है. ठीक है, 4 सेंटर्ड आर्च, ये 3 सेंटर्ड आर्च. ठीक है, 2 सेंटर्ड आर्च, 1 सेंटर्ड आर्च. ठीक है, अभी 3 सेंटर्ड आर्च है. ये सेगमेंटल आर्च है, ये सेमी सर्कुलर आर्च है. ठीक है, ये ड्रॉप गोथिक आर्च है, ये वेरिएशन है. इक्विलेटरल गोथिक आर्च है, इसमें ये और ये आर्क इक्विलेटरल होते हैं. ठीक है, और ये ड्रॉप गोथिक आर्च है. ठीक है, तो इस तरह इसमें मुख्तलिफ किस्म आते हैं. ये भी मेरे पास क्या है, ड्रॉप गोथिक आर्च है, ये भी ड्रॉप गोथिक आर्च है. ठीक है, ये लेंसेंट आर्च है और ये गोथिक आर्च है, और दोनों पॉइंटेड आर्च है, हैविंग 2 सेंटर्ड एंड रेडियाई ग्रेटर देन. ठीक है, अब ये इक्विलेटरल गोथिक आर्च है. ठीक है, ये लेंसेंट गोथिक आर्च है, ये ड्रॉप गोथिक आर्च है. यू कैन सी द डिफरेंस. ठीक है, तो ड्रॉप गोथिक का राइज कम होता है लेंसेंट गोथिक से, लेंसेंट गोथिक का राइज सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू इक्विलेटरल गोथिक आर्च से. सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 2 में ये हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड है, ये ब्रिक मैसनरी में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, देखिए हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड जो है ये वेराइटी है रैकिंग बॉन्ड की, एंड विच यूनिट्स आर लेड इन एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. जिसमें हम यूनिट्स को यानी ब्रिक यूनिट्स को हम डालते हैं 45 डिग्री एंगल में टू द डायरेक्शन ऑफ द रो. जिस डायरेक्शन में मेरे साथ रो है उसकी डायरेक्शन में, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल की जगह अल्टरनेट कोर्सेज लाई इन अपोजिट डायरेक्शन. जो अल्टरनेट कोर्सेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, रिजल्टिंग इन अ zigzag पैटर्न. ठीक है, सो एक्चुअली द herringbone bond and a brick masonry is a variety of racking bond, right? It's a variety of racking bond, and units are laid in an angle of 45 degree. I mean, all these units are laid in angle of 45 degree. It makes angle of 45 degree. Like if I can make angle here, it's 45 degree. Here 45 degree, right? So the angles are make 45 degree, right? If I can take this, so it's a 45 degree. So units are laid in angle of 45 degree, right? And to the direction of the row. I mean,
this is column, this is column, and this is row. So these are, you know, laid direction of the row, right? To the direction of the row. Units are laid in an angle of 45 degree to the direction of the row. So this is a herringbone bond pattern. देखिए इसमें जो हम ब्रिक की ईंटें होती हैं उसको हम आर लेड इन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसको हम 45 डिग्री एंगल पे टू द डायरेक्शन ऑफ द रो इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और फिक्स हॉरिजॉन्टली की जगह हम इसको रो के डायरेक्शन में रखते हैं 45 डिग्री एंगल पे। और अल्टरनेट कोर्सेस, मतलब एक ये कोर्स है तो अल्टरनेट कोर्सेस लाई इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। देख ये और ये और ये और ये अल्टरनेट कोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी। तो ये इस तरह एक जिग जैग पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन जिग जैग पैटर्न। तो हेरिंगबोन बॉन्ड में अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछे कि इसमें मेरे पास पैटर्न कौन सा होता है, तो इस पे मेरे पास जिग जैग पैटर्न होता है। कोई भी माई का लाल इंटरव्यू में मुझसे किसी भी जगह पूछे कि हेरिंगबोन बॉन्ड मैसनरी ब्रिक मैसनरी में मेरे साथ पैटर्न कौन सा होता है, जिग जैग पैटर्न होता है मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं वॉल हैविंग थिकनेस मोर देन 4 ब्रिक्स, एक ऐसा वॉल जिसकी मोटाई 4 ईंटों से ज़्यादा होती है। आर्किटेक्चर फिनिश टू द फेस वर्क, जो फेस वर्क होता है, जिस चीज़ को हम अपने आंखों से देखते हैं फ्रंट पे, वो फेस वर्क होता है, उस पे आर्किटेक्चर फिनिश के लिए इसको यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल पैनल इज ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग जब हम करते हैं, ये देखिए, ये अब ब्रिक फ्लोरिंग हमने की है, तो ये क्या कौन सा बॉन्ड है, ये हेरिंगबोन ब्रिक मैस्टरी है, ठीक है। ये ब्रिक फ्लोरिंग है, लेकिन ये बॉन्ड कौन सा है, ये जिग जैग पैटर्न कौन सा है, ये हेरिंगबोन बॉन्ड है ब्रिक मैस्टरी का, ये हेरिंगबोन ब्रिक बॉन्ड मैस्टरी है, ठीक है। ये भी एक जगह पे इस तरह लगा है, लेकिन ये देखिए ये भी जिग जैग पैटर्न बनाता है इस तरह, ठीक है। तो ये भी हेरिंगबोन ब्रिक मैस्टरी है, ठीक है। ये एक अलग जगह पे हेरिंगबोन ब्रिक मैस्टरी है। तो इसमें मेरे पास जो ऑप्शन है वो सारे ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द डी। इसको हम एक ऐसा वॉल जिसकी थिकनेस 4 ब्रिक्स से ज़्यादा हो, 4 ब्रिक्स, ठीक है, या 4 ब्रिक्स से ज़्यादा हो, ठीक है, थिकनेस 4 ब्रिक्स से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके लिए भी हम ये हेरिंगबोन बॉन्ड यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चर फिनिश टू द फेस वर्क के लिए, मतलब आर्किटेक्चर खूबसूरती के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 3 में क्वेश्चन 3, कट इन अ फ्रेम ऑफ अ डोर टू रिसीव द शटर इज कॉल्ड। A cut in a frame of door to receive the shutter is called lower, stop, horn, or rebate. So the correct option is rebate. But how? देखिए दरवाजे के पार्ट्स हम गौर से पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो जगह है ये इसको कहते हैं विंडो जैम्स, ठीक है। विंडो जैम्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। मतलब ये जगह हम अक्सर खिड़कियों के साथ लगाते हैं, ठीक है। ये जगह ये क्या है, ये जैम्स है, ठीक है। ये दरवाज़ों में और विंडो में फिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब चुनाई के साथ, चुनाई के वॉल के साथ जो जिस पे प्लास्टर लगा होता है और रंग लगा होता है, डिस्टेम्पर लगा होता है, पेंट लगा होता है, उसके साथ ये फिक्स होता है, तो इसको जैम्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा
दूसरा जो है ये होल्ड फास्ट है। होल्ड फास्ट क्या है? इसको हम पश्तो उर्दू में पश्तो में अल्फाज कहते हैं। यहाँ पे इसमें हम ये क्या करते हैं, हम इसमें नेल्स इसमें हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इसको हम दीवार में के साथ क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बीच में हम ब्रिक्स रखते हैं, ठीक है। तो ये और ये क्या करता है, बेसिकली जॉइंट ग्रिप बनाता है, ठीक है। ब्रिक मेसनरी, ठीक है, विंडोज़ या डोर्स की ब्रिक मेसनरी और डोर के साथ या एल्युमिनियम के साथ या विंडो के साथ, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा ब्रिक मेसनरी भी यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये हॉर्न है, ये यहाँ से लेके ये फासला हॉर्न है, ये हेड है, ये रिबेट है, ये टू रिसीव द शटर ऑफ अ डोर फ्रेम, राइट, ये रिबेट है। तो ये बेसिकली कट होता है, ये मेरे साथ क्या होता है, दरवाजे के फ्रेम में कट होता है और ये रिसीव करता है शटर को, टू रिसीव द शटर इट्स कॉल्ड रिबेट, ठीक है। इसमें भी ये बॉटम रेल है, ये टॉप रेल है, ये हिंज है, ठीक है, ये जैम्प है, ये स्टाइल है, ये जगह स्टाइल है, ये थ्रेशोल्ड है, ये जगह, ठीक है, ये भी स्टाइल है, ये मुलियन है, ये बीच में ये मुलियन है, ठीक है, ये पैनल है, ये हेडर है, ठीक है। तो इसमें फिर रिबेट कौन सा है, रिबेट कौन सा है, रिबेट क्या है? अगर इसको मैं, ये रिबेट है, ठीक है, ये ठीक है ना, ये लाइन रिबेट है बेसिकली, ठीक है। ये कट होता है, इट्स अ कट एंड डोर फ्रेम, राइट। ये टॉप रेल है, ये बॉटम रेल है, ये फ्रेम है, ये पैनल है, ये लोअर मुलियन है, ये मिड मुलियन है, ये टॉप मुलियन है, ये पैनल है, ये फ्रीज रेल है, ये ठीक है, और ये मिडल रेल है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो है, ये कट, ये रिबेट है, कट इन डोर फ्रेम। सो सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 4, the alignment of a cross joint along the plumb line is, the alignment of a cross joint along the plumb line is called bed block, perpend, lintel या vertical line। इस पे कौन सा है? So the alignment of a cross joint along the plumb line is perpend. What is perpend? So let's discuss perpend. Perpend and cross joint. The term perpend, perp or cross joint. तो perpend का मतलब है perp, ठीक है। perpend का मतलब है क्या चीज? perp, ठीक है, या परपेंड का मतलब है पर्प, ठीक है, या इसका मतलब है पर्प। सो इसको हम पर्प भी कह सकते हैं या क्रॉस जॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। रेफर टू द वर्टिकल जॉइंट्स, ये वर्टिकल जॉइंट्स को प्रेफर करता है, मतलब इस तरह के वर्टिकल जॉइंट्स को। ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट है, ये वर्टिकल है। बिटवीन ब्लॉक्स और ब्रिक्स या ब्लॉक्स के दरमियान, दैट हैव बीन लेड इन अ हॉरिजॉन्टल कोर्स, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कोर्स में बिछाते हैं टू फॉर्म अ वॉल, ताकि इससे हम दीवार बनाएं। तो इसका मतलब है परपेंड, ठीक है। देखिए जब हम ब्रिक मेसनरी करते हैं, ठीक है, तो ब्रिक मेसनरी के दरमियान जो हमारे साथ जो वर्टिकल जॉइंट्स आते हैं, इसको हम पर्प कहते हैं, पर्प, PERP, ठीक है।
या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पर्प कहते हैं। या देखो इस वर्टिकल जॉइंट जो है इसको हम परपेंड भी कह सकते हैं, परपेंड, ठीक है। और इसको हम क्रॉस जॉइंट भी कह सकते हैं। देखिए एक ये जॉइंट है, ठीक है, अगर मैं देखूं एक ये जॉइंट है, ठीक है, ये एक ये जॉइंट है और एक ये जॉइंट है। तो ये जॉइंट इस जॉइंट के क्रॉस है, या ये जॉइंट इस जॉइंट के क्रॉस है। इसकी थिकनेस कितनी होगी इस जॉइंट की, ये जो जॉइंट है इसकी थिकनेस कितनी होगी और इसकी, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख लें कि इसकी थिकनेस कितनी होगी। आप कितना जानते हैं इसको आप लिख लें कि इस जॉइंट की थिकनेस कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कितने mm में होगी, कितने सेंटी में होगी, कितने इंचेस में होगी, कितनी सेंटीमीटर में होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख लें कि इसकी कितनी थिकनेस होगी, ठीक है। या इसको फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। या तो बेसिकली परपेंड ये है मेरे पास, ये क्रॉस जॉइंट है, इसको क्रॉस जॉइंट पे कहते हैं, इसको पर पे कहते हैं। और ये रेफर करता है, रेफर टू द वर्टिकल जॉइंट बिटवीन ब्लॉक्स और ब्रिक्स या ब्लॉक्स दरमियान ये वर्टिकल जॉइंट होता है, ये बेड होता है, ठीक है। ये बेड जॉइंट है, ये परपेंड जॉइंट है, ये बेड जॉइंट है। और ये एरस है, इस टॉप सरफेस को एरस कहते हैं। और ये हाफ बेड है, ठीक है। फुल बेड का हेडर फेस है, स्ट्रेचर फेस है। और ये क्या है, ये लैप और हाफ बाउंड है, ठीक है। ये इसको चूँकि ये मतलब हाफ बेड के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको लैप और हाफ बाउंड कहते हैं, ठीक है। तो परपेंड्स आर नॉर्मली फिल्ड एंड सील्ड विद मोटर। इस नॉर्मली ये मसाले में डालते, इसके साथ मसाले के साथ बंद करते दो ईंटों को, और इसमें हम मसाला डालते हैं, ठीक है। इससे हम इसको फिल करते हैं, भरते। द हॉरिजॉन्टली मोटर जॉइंट इन अ वॉल कंस्ट्रक्शन इज टिपिकली रेफर्ड टू एज द बेड जॉइंट, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल हमारे साथ जॉइंट होता है वॉल कंस्ट्रक्शन में उसको हम बेड जॉइंट कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर जॉइंट होता है जिसको हम क्रॉस जॉइंट कहते हैं जिसको हम परपेंड कहते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट ऑफ क्रॉस जॉइंट अलॉन्ग द प्लम्ब लाइन, मतलब प्लम्ब लाइन के साथ जो है जो क्रॉस जॉइंट है उस क्रॉस जॉइंट को हम परपेंड कहते हैं, ठीक है, अलॉन्ग द प्लम्ब लाइन, ओके। देखो इसको कहते हैं प्लम्ब बॉब, साल, उर्दू में इसको साल कहते हैं, ठीक है। और अलॉन्ग द प्लम्ब लाइन मीन ये प्लम्ब लाइन है, ठीक है। या ये अगर मैं देखूँ ये प्लम्ब लाइन है, ठीक है, हाँ ये प्लम्ब लाइन है, ठीक है। देखो ये प्लम्ब लाइन है, ये इसमें थ्रेड है और ये लाइन प्लम्ब लाइन है और ये प्लम्ब बॉब है। So make it along the plumb line. The boundary wall is along the plumb line, right? So its alignment is all right. Its alignment, all the courses of whether it's a header stretcher courses or either stretcher courses or header courses or Flemish bond or English bond, whatever any kind of bond we are using it. But if it's according to a plumb line by plumb bob, use of a plumb bob for the construction of brick wall, then all the courses are vertically aligned, right? So this is the method to check specifically the wall, right? Yeah, alignment, vertical alignment, okay. तो जो मेरे साथ परपेंड होता है वो बेसिकली क्या होती है, वो अलाइनमेंट होती है, ठीक है। या अलाइनमेंट होती है मेरे पास क्रॉस जॉइंट की along the plumb line of the plumb bob. A temporary rigid structure having platform to enable masons to work at different stages of a building is known as scaffolding, dead shore, racking shore, underpinning. So it indicates that a temporary rigid structure having platform to enable mason to work at different stages of building. So that's scaffolding, right? ये बेसिकली क्या होता है मेरे साथ, ये बेसिकली
टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है मेरे पास, ठीक है, और स्कैफोल्डिंग, और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये बेसिकली स्कैफोल्डिंग जो है, इसमें हमारे साथ डिफरेंस के फोल्डिंग पाइप्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं, फिर जो मेसन्स जो है जिस पे खड़े होते हैं उसके लिए प्लेटफॉर्म होता है। तो ये टेम्पररी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हैविंग प्लेटफॉर्म टू इनेबल मेसन्स, और जो कड़ी करने के लिए इसके इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होता है टू वर्क एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब अगर आप ग्राउंड फ्लोर में काम करना चाहें तो आप ग्राउंड फ्लोर में काम कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट फ्लोर में काम करना चाहें तो आप फर्स्ट फ्लोर में काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग एज पर डिज़ाइन हम इसको यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये वुडन स्कैफोल्डिंग भी हो सकता है और स्टील स्कैफोल्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट स्कैफोल्डिंग होता है इसमें। जो बेसिक स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग होता है तो उसमें तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं हमारे साथ, जिस तरह की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं हाईलाइट करूँ, मतलब दो स्कैफोल्डिंग के पाव के बीच जो विड्थ है तो उसको हम बे विड्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बे विड्थ। फिर इसके साथ ये जो स्कैफोल्डिंग 5 गई है डायगनली, ठीक है, इसको कहते हैं फेस ब्रेस लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इस तरह फिर दो स्कैफोल्डिंग पाइप को हॉरिजॉन्टली जब हम लॉन्गिट्यूडनली दो स्कैफोल्डिंग पाइप्स गए, उसको दो वर्टिकल स्कैफोल्डिंग पाइप्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस दो हॉरिजॉन्टल जो ये लॉन्गिट्यूडनल स्कैफोल्डिंग पाइप्स इसको हम क्रॉस, इसके परपेंडिकुलर हम क्रॉस जॉइंट में हम क्या करते हैं और पाइप प्रोवाइड करते हैं जो कि उतना ही लेंथ होता है जितना दो स्कैफोल्डिंग पाइप्स का होता है। और उन स्कैफोल्डिंग पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए जो लॉन्गिट्यूडनल पाइप्स गए होते हैं तो बे विड्थ जितना होता है मेरे साथ उससे ज़्यादा इसकी विड्थ होती है बे विड्थ से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसर्न, राइट, इस पाइप को ट्रांसर्न कहते हैं। इसी तरह ये दो स्कैफोल्डिंग पाइप्स है, ठीक है, तो ये भी बे लेंथ है, ठीक है, ये बे लेंथ है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनली है, ठीक है। अगर मैं देखूँ ये लॉन्गिट्यूडनली है, ठीक है। लेट मी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनली है और ये विड्थ है, तो ये बे विड्थ है, ये बे लेंथ है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ बे, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये जो पाइप वर्टिकल गए इसको कहते हैं डबल कपलर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये जो वर्टिकल पाइप गए इसके साथ जब हम ये गार्डरेल पाइप्स है गार्डरेल के, तो इसको कनेक्ट करने के लिए इसको वर्टिकल पाइप और रेल के जो गार्डरेल है उसके पाइप को कनेक्ट करने के लिए हम डबल कपलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर ये बेस प्लेट है और इस बेस प्लेट के साथ ये सोल बोर्ड लगा होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो बेस लिफ्ट और किकर लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो ये असेंबली है जिसमें एक ये वर्टिकल पाइप आया, एक हॉरिजॉन्टल और एक डायगोनल आया है, ठीक है, और ये एक ये भी आया है, ठीक है, ट्रांसन आया है। इन सब को कनेक्ट करने के लिए जो हमने जो लिफ्ट यूज़ किया होता है इसको हम कहते हैं बेस लिफ्ट और किकर लिफ्ट। फिर ये स्टैंडर्ड पाइप्स होता है, स्टैंडर्ड फोल्डिंग पाइप्स है, ये लेजर है, ठीक है। ये जो बेस ये वाला जो है बेसिकली ये जो उसके फोल्डिंग में जो फ्रंट फेस है ये लेजर है, ठीक है। और ये जो है टो बोर्ड और किक बोर्ड है ये, ठीक है, ये पोर्शन। और ये एमएस रेल है, ठीक है, ये एमएस ड्रेल है, ठीक है। फिर ये गार्ड रेल है और ये पुट लॉक है, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकला होता है। और ये बेसिकली मेरे साथ है टॉप वर्किंग प्लेटफॉर्म, ये बॉटम वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये लेफ्ट हाइट है, एक फ्लोर के प्लेटफॉर्म के दूसरे प्लेटफॉर्म के बीच जो हाइट है ये लेफ्ट हाइट, तो ये कंपोनेंट से स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। सो इन सेक्शन 3 question number 6 I talk about the additional piles. So that's additional piles which are driven, right, which are driven. All the pile must be driven. This is one is to show that all the piles must be driven.
inside. For example, if that's a ground level, right, slight undulation, right, it's a ground level. It's a ground level. So if any pile has to driven, then we has to driven the. So all you can see, all these piles must be driven. Now that's a ground hard strata. That might be any strata, right? That might be any strata. So that pile is driven over here, right? For example, if that's my pile. So that is actually this pile is driven here. The additional piles which are driven to increase the capacity of supporting loads. Now we know that there are some supporting loads that might act on a building, plaza, school, harbor, building infrastructure, and vertical piles. So the additional piles which are driven to increase the capacity, that indicates the bearing capacity, right? That's the bearing capacity. So they talk about the bearing capacity, right? So the additional piles which are driven to increase the bearing capacity, the capacity of supporting loads. I mean, if the load is acting on this pile, तो इसमें मेरे पास कौन सा, ये मेरे पास रेकिंग फाइल्स है. रेकिंग फाइल एक ऐसा पाइल है कि जो कि एडिशनल पाइल है, ठीक है. या ये क्या है, ये बेसिकली मेरे साथ एडिशनल पाइल्स होता है, ठीक है. और जो जो कि कैपेसिटी बढ़ाते हैं, जो लोड आती है इस पाइल के ऊपर, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, रैकिंग पाइल्स. तो ये रैक पाइल्स है, ठीक है, ये पाइल्स है, ठीक है, जो कि समंदर में लगे, इसको हमने डाले हुए हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये मेरे पास पाइल कैप है और ये पाइल्स है, पाइल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है. तो ये रैकिंग पाइल्स है, पाइल इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट, तो ये रैकिंग पाइल्स है, ठीक है. दीज आर रैकिंग पाइल्स. ये कैपिंग बीम है, ये जो है कंटिग्यूअस पाइल्स है, ठीक है, फॉर्मेशन लेवल है, और ये रैकिंग पाइल्स है. तो ये एडिशनल पाइल्स होती है. अब 10 डिग्री में ये इसको हमने क्या किया है, इंक्लाइन किया हुआ है, 10 डिग्री बना रहा है, जो कि ये कंटिग्यूअस पाइल के साथ, ठीक है. और 7.5 मीटर्स की हाइट है पाइल कैप से लेके फॉर्मेशन लेवल तक, ठीक है. ये लेवल है फॉर्मेशन, ठीक है, इससे ये नीचे गए हुए हैं, ठीक है. तो अब इसमें यह है कि फर्म सैंडी क्ले है ये, ठीक है, और स्टिफ टू वेरी स्टिफ ग्रेविटी. तो ये रैकिंग पाइल्स है, ठीक है. इस इमेज में अगर हम देख लें, या अगर मैं इस इमेज में मैं देख लूँ, ठीक है, तो ये प्लान है, ये सारे पाइल्स है, ठीक है, 16 पाइल्स ये हैं. तो इसमें अगर देख ले तो ये इसका एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन, ठीक है. ये पाइल कैप है और ये पाइल्स है, ठीक है, और ये पाइल कट ऑफ लेवल है, ठीक है, ये पाइल कट ऑफ लेवल है, ये पाइल कैप है. और ये रैकिंग जो इंक्लाइंड पाइल्स होता है, ये बेसिकली इंक्लाइंड पाइल्स होता है, रैकिंग पाइल्स. और ये एडिशनल पाइल्स होता है, ठीक है, इंक्लाइंड पाइल होता है, और ये कैपेसिटी को बढ़ाते हैं लोड की, ठीक है, लोड ऑन पाइल्स, जो पाइल्स पे जो लोड लगता है, ठीक है. तो ये रैकिंग पाइल्स हमने पढ़ लिए, और ये सर्टन एंगल्स बनाता है, ठीक है. अब देखो ये वर्टिकल पाइल्स है, ये कंस्ट्रक्शन पाइल्स हो सकते हैं, एनी पाइल्स, लेकिन ये जो है और ये रैकिंग पाइल्स है जो कि इंक्लाइंड होंगे, और ये एडिशनल पाइल्स है. The purpose of the racked pile is to sustain the majority of the horizontal load. जो horizontal load है उसको sustain करना होता है, यानी पटे हुए ढेरों का मकसद उफ की बोझ की अक्सरियत को बरकरार रखते हैं. horizontal load को उफ की बोझ भी कहा जाता है, ठीक है. The potential lateral soil displacement demand focus on the lateral behavior of the soil structure and direction in the actual behavior of the piles to fully utilize the benefit of the precast piles. मुमकिन आप पस मंज़र की मट्टी की नकल मकानी, मट्टी के ढांचे की तामुल
के पस मंज़र के रूबे और डीरों के हकीकी रूबे पर तवज्जो मरकूज़ करने का मुतालबा करती है ताकि पेश की ढेर के फ़वाइद को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द पोटेंशियल लिटरल सॉइल डिस्प्लेसमेंट डिमांड फोकस ऑन द लिटरल बिहेवियर ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन and the actual behavior of the piles to fully utilize the benefit of the precast piles. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पाइल्स किसे कहते हैं, ये हमारे साथ प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग और बोरिंग पाइल फाउंडेशन इनटू द ग्राउंड। मतलब ये इस तरह का प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्राइंग करते हैं, नीचे धकेलते हैं या बोरिंग करते हैं, ठीक है, पाइल फाउंडेशंस की। तो ठीक है, इनटू द ग्राउंड में तो इसको कंस्ट्रक्शन पाइल्स कहा जाता है, ठीक है। बीनीथ अ बिल्डिंग दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे हमारे पास सॉइल जो है वो किस किस्म का होता है, अगर आप लोगों को पता है तो आप नीचे लिख लें कमेंट में किस किस्म का सॉइल होता है जिसमें हम पाइल्स नीचे डालते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स। दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जो बना नहीं हो। These piles transfer load from the structure to the ground, helping to support it. और ये पाइल्स क्या करते हैं, जो बिल्डिंग है जहाँ पे मेरे पास सॉइल लूज हो, क्लेई सॉइल हो, या जहाँ पे वाटर टेबल हाई हो, जहाँ पर पानी की मकदार ज़्यादा हो, एक ऐसा सॉइल जहाँ पर वाटर टेबल बहुत नीचे हो, से 200 फुट 300 फुट नीचे हो, और एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरे पास वाटर टेबल 50 फुट में हो, 20 फुट में हो, 30, तो वहाँ पर आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन बनाने के बजाय हम पाइल फाउंडेशन प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो दीज पाइल्स ट्रांसफर लोड, जो बिल्डिंग का लोड है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जो स्ट्रक्चर का लोड है उसको ट्रांसफ़र करते हैं ग्राउंड में अपने पाइल्स की जरूरत, हेल्पिंग टू सपोर्ट इट, ताकि जो बिल्डिंग ऊपर इस पे खड़ा है उसको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, सपोर्ट मिल जाए। तो पाइलिंग क्या है, पाइलिंग बेसिकली मेरे साथ एक प्रोसेस है। पाइलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग, मतलब इसमें हम पाइल को ज़मीन के नीचे डालेंगे। तो इसमें फिर देखिए यहाँ पे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को हम देखेंगे, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, सॉइल की जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। या पाइलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बोरिंग पाइल फाउंडेशन। ड्राइविंग पाइल फाउंडेशन मतलब हर एक केस में हम ड्राइव या बोर करेंगे ज़मीन के अंदर, ठीक है, किसको, पाइल फाउंडेशंस को, पाइल्स को, ठीक है, इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। जब देखिए ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ये NSL है, यहाँ पर ये NSL है, यहाँ पर ये नेचुरल सरफेस लेवल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल सरफेस लेवल ये टॉप है। तो नेचुरल सरफेस लेवल ज़मीन के अंदर, या जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे, बीनीथ द नेचुरल सरफेस लेवल, बीनीथ द ग्राउंड लेवल, हम पाइल्स को क्या करते हैं, ड्राइव करते, बोर करते हैं, ठीक है। Beneath a building that is under a construction, and these piles transfer loads from the structure, जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है उस पर क्या कर, जो लोड आता है उसको क्या कर, सपोर्ट करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं ये ज़मीन के नीचे, ठीक है। अगर ये मेरे साथ ग्राउंड लेवल है, ठीक है, अगर ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, अगर ये टॉप पोर्शन मेरे पास क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, इसमें स्लाइड एंडुलेशंस है, ठीक। अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल के नीचे इसको हम ड्राइव करते हैं और इसके ऊपर जो लोड आता है इसको ये नीचे ट्रांसफ़र करता है, नीचे मुंतकिल करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे, फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड, हेल्पिंग टू सपोर्ट, ताकि बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करें किसी भी स्ट्रक्चर पे। देखिए स्टेज 1 पे ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग मशीन के थ्रू, ठीक है, पाइल्स ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में इसको हम ड्रिल करते हैं, देखिए ये पाइल्स ड्रिलिंग मशीन है या पाइल कटिंग मशीन है। तो इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने क्या किया, ड्रिल कर दिया, बोर कर दिया। फिर इसमें हम क्या करें, इंसर्ट रिइंफोर्समेंट। स्टेज 2 में हम इसको इंसर्ट रिइंफोर्समेंट करते हैं। स्टेज 3 में हम कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर मशीन के थ्रू हम इसमें कंक्रीट डालते हैं, ठीक है। चौथे स्टेज में पाइल फिनिश हो जाता है मेरे पास। ड्राइविंग भी होती है, बोरिंग भी होती है, इसमें हम स्टील भी डालते हैं एज पर डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ड्राइंग्स अप्रूव बाय द क्लाइंट, और देन वी हैव टू पुट द एज पर डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट इनटू इट, और इसमें फिर हम कंक्रीट डालते हैं। स्टेज 4 में मेरे पास
फिनिश्ड पाइल हो जाता है। तो ये पाइलिंग की सिचुएशन है। देखिए एसेंट्रिक पाइल्स क्या होता है, जो हमारे साथ अलाउेबल एसेंट्रिसिटी होती है, एसेंट्रिसिटी पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हाँ, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो मेरे साथ एसेंट्रिसिटी होती है वो कितनी होती है, तो जो अलाउेबल एसेंट्रिसिटी 75 mm तक होती है इन बोथ डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर मतलब एक डायरेक्शन मतलब अगर इस तरह डायरेक्शन है तो इस तरह डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन एक ये, ठीक है। पाइल्स में दो डायरेक्शन। द लिमिट इज एक्चुअली एप्लीकेबल व्हेन ऑल पाइल्स मूव टुगेदर। जब सारे पाइल्स मूवमेंट कर जाते हैं, मूव टुगेदर, तो फिर इसमें हम ये लिमिट हम इसमें डालते हैं, ठीक है। द पाइल ग्रुप कैपेसिटी कैन बी रेज अप बाय एडिंग इन एडिशनल पाइल, ठीक है। तो जो मेरे पास जो पाइल ग्रुप है उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम रेज करते हैं जब हम इसमें एडिशनल पाइल। दिस पाइल कैन बी वन ऑफ द सोल्यूशन टू अवॉइड द फेलियर ऑफ पाइल के अंडर द एसेंट्रिक लोड। तो ये पाइल जो है ये ऐसा सोल्यूशन है जो जिससे हम क्या करते हैं, फेलियर को अवॉइड करते हैं पाइल कैप का एसेंट्रिक लोड के नीचे, ठीक है। तो बेसिकली दिस पाइल कैन बी वन ऑफ द सोल्यूशन टू अवॉइड द फेलियर। ये पाइल जो है एसेंट्रिक पाइल्स, इसमें एसेंट्रिसिटी 75 mm तक होती है दोनों डायरेक्शन में। ये एक सोल्यूशन है ताकि हम फेलियर को अवॉइड करें, ऑफ पाइल कैप का जो फेलियर होता है उसको हम अवॉइड करें अंडर द एसेंट्रिक लोड के नतीजे में। अगर ऊपर बिल्डिंग पे या इस पाइल कैप पे अगर एसेंट्रिक लोड डल रहा है, लग रहा है, ठीक है। असल में 1 इंच में मेरे पास 25.4 mm होते हैं ना, तो 75 mm को अगर मैं डिवाइड करो 25.4 mm पे, तो इसमें 2.95 इंचेस की एसेंट्रिसिटी होती है मेरे पास एसेंट्रिक पाइल्स में। यानी 2.95 इंचेस की एसेंट्रिसिटी होती है किस चीज़ में, बोथ डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी होती है एसेंट्रिक पाइल्स में, ठीक है। इसमें ये सबसे ज़रूरी, दुनिया जहाँ में मैं जाऊँ, दुनिया जहाँ के इंजीनियर्स को मैं चैलेंज करूँ, इफ एनीबडी आस्क मी अबाउट eccentricity in eccentric piles, that is 75 mm, which is equal to 2.95 inches in both direction, and this limit is actually applicable when all piles move together. The pile group capacity can be raised up by adding an additional pile, और इसमें हम कैपेसिटी को तभी बढ़ा सकते हैं जब इस पे हम एडिशनल पाइल्स को ऐड कर लें, ठीक है। देखिए एसेंट्रिक पाइल्स वो पाइल होते हैं जो बेसिकली उसमें क्या होता है, हमारे साथ जो है बोथ डायरेक्शन में मोमेंट्स होती है, और वो होती है 75 mm तक एसेंट्रिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट हियर, तो यहाँ पे ये जो लाइन मुझे शो हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली सेंटर एक्सिस है, ठीक है, कॉलम का। अब ये कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हुआ है, ठीक है। तो इसके सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला, ये बेसिकली एसेंट्रिसिटी है, ई है। तो ये इस टाइप के पाइल्स को हम एसेंट्रिक पाइल्स कहते हैं, और इसमें अप टू परमिसिबल लिमिट की एसेंट्रिसिटी 75 mm की होती है, जो कि 2.95 इंचेस के हैं। तो अब मैं देख सकता हूँ ये जो पाइल एज बिल्ड लोकेशन है, ये जो है बेसिकली अगर मैं देखूँ ये पाइल की एज बिल्ड लोकेशन है, ये डिज़ाइन लोकेशन है, और ये फिर जब अपने डिज़ाइन से ये यहाँ तक आए जो नया जो लोकेशन है इसका, तो उसको हम एज बिल्ट लोकेशन कहते हैं, ठीक है, जो न्यू लोकेशन है इसकी, ठीक है। तो देख इसको हम कहते हैं एसेंट्रिक पाइल्स, ठीक है। तो दिस इज बीन द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसेंट्रिक पाइल्स। अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है ना कि कितने टाइप्स ऑफ पाइल्स है, कुछ गधे पूछते हैं, उनको खुद कुछ नहीं आता लेकिन वो फिर पूछते। तो इसमें जो टाइप्स है मेरे पास, एक ये मेरे पास जो टाइप है एक ड्रिवन पाइल्स है, ठीक है, और ये 4 टाइप्स है मेरे पास पाइल फाउंडेशन की। हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, ईच विद इट्स ओन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक ड्रिवन पाइल होता है, एक बोर्ड पाइल होता है। एक ड्रिवन एंड कैस्ट सितु
कैस्ट इन सितु पाइल होता है, एक एग्रीगेट पाइल होता है, ठीक है। ये 4 किस्म की जो पाइल्स होते हैं, ड्रिवन पाइल्स, बोर्ड पाइल्स, फिर ड्रिवन एंड कैस्ट इन सितु पाइल्स, और आखिर में एग्रीगेट्स पाइल्स। सो ड्रिवन एंड कैस्ट इन सितु पाइल्स ये भी पाइल की एक टाइप है, ठीक है। कुछ टाइप्स ये भी है इसमें, अगर मैं देखूँ तो इसमें टेम्बर पाइल्स भी है, ठीक है। अक्सर पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, टेम्बर पाइल्स भी है जो कि अनट्रीटेड होता है और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव के साथ भी, ठीक है। कंक्रीट पाइल्स है, प्रीकास्ट पाइल्स है, कास्ट एंड प्लेस पाइल्स है, स्टील पाइल्स है, आई सेक्शन पाइल्स है, हॉलो पाइल्स है, कंपोजिट पाइल्स है। ये सारे पाइल्स की टाइप्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन मटेरियल्स, ये मटेरियल्स के लिहाज से है, एंड पाइल फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। पाइल्स की जो किस्में हैं इसमें मटेरियल के लिहाज से मेरे साथ टेम्पर पाइल है, कंक्रीट पाइल है, ये टेम्पर लकड़ी है, ये एक अलग मटेरियल है। कंक्रीट जो है मसाला है, ये अलग मटेरियल है। स्टील जो है ये एक अलग मटेरियल है, और टेम्पर स्टील की कम्बिनेशन से अगर बनाए तो एक अलग मटेरियल का बन जाता है, इसको कंपोजिट बन कहते हैं हम। और अगर टेम्पर और स्टील से बनाए तो एक अलग मटेरियल बन जाता है जिसको हम कंपोजिट पाइल। और अगर मेरे पास कंक्रीट और स्टील का बने तो एक अलग मटेरियल इसको हम कंपोजिट पाइल कहते हैं। और अगर कंक्रीट और टेम्पर का बन जाए, कंक्रीट और अगर टेम्पर का बने तो एक अलग मटेरियल है। टेम्पर स्टील का बन जाए तो एक अलग पाइल है, कंक्रीट और स्टील का बन जाए तो एक अलग पाइल है। कंक्रीट और स्टील का बन जाए तो एक अलग पाइल है। और टेम्पर कंक्रीट या कंक्रीट टेम्पर एक अलग पाइल है, कंपोजिट पाइल है। और अगर स्टील तीनों का मिलाए तो ये भी कंपोजिट अलग पाइल, तो ये भी मटेरियल डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। तो मटेरियल के लिहाज से ये कंस्ट्रक्शन मेथड के लिहाज से कास्ट एंड प्लेस पाइल है और प्रीकास्ट पाइल है, ठीक है। इंस्टॉलेशन टाइप के लिहाज से रिप्लेसमेंट पाइल्स है, डिस्प्लेसमेंट पाइल्स है, और लोड ट्रांसफ़र के लिहाज से एंड बेयरिंग पाइल्स है, फ्रिक्शन पाइल्स है, और इसमें फ्रिक्शन कम बेयरिंग पाइल्स है, ठीक है। वो वाला टाइप मिस है। तो 4 टाइप्स होते हैं, एक मटेरियल के लिहाज से, एक कंस्ट्रक्शन मेथड्स के लिहाज से, एक इंस्टॉलेशन टाइप के लिहाज से, और एक लोड ट्रांसफ़र के लिहाज से टाइप्स की पाइल्स के टाइप्स होता है, ठीक है। बेसिकली एसेंट्रिसिटी मेरे पास ये होती है कि जब हमारे साथ जब हम क्या करते हैं, there is a shortcomings of drawing pre-designated piles at exactly correct position ground, जो हमारे पास एज पर ड्राइंग जो मेरे पास जो करेक्ट पोजीशन होता है पाइल्स को अंदर डालने का, ज़मीन के अंदर, तो जब हम करेक्ट प्लेस पे हम पाइल्स को नहीं डालते तो उसमें शॉर्टकमिंग आती है, कोताहियाँ आती है, खताइयाँ आती है, और उसमें हमारे पास कमियाँ आ जाती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो प्री डिजिग्नेटेड पाइल होता है जिसको हमने डालने से पहले डिज़ाइन किया होता है कि इसको इस इतने डाया में, इस प्लेस में हम इसको ड्राइव करेंगे, इसको हम अंदर डालेंगे ज़मीन के अंदर, उस प्री डिजिग्नेटेड प्लेस की जगह हम जो इसको एग्जैक्टली करेक्ट पोजीशन होता है उसकी जगह अगर हम ना डालें, उसमें शॉर्टकमिंग आ जाए, तो द डिविएशन ऑफ दिस पाइल्स में jeopardize द इंटीग्रिटी ऑफ पाइल कैप। तो इसमें क्या करता है, जो पाइल कैप होता है उसमें डिविएशन आ जाता है। अपने प्री डिजिग्नेटेड पाइल्स जो हमारे पास जो एग्जैक्टली करेक्ट पोजीशन से, उससे क्या था, डिविएशन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, उस डिविएशन को एसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मटेरियल के लिहाज से हम एक तो कंक्रीट पाइल्स है, ठीक है, पाइल्स है, ठीक है, एक कंक्रीट पाइल है, एक स्टील पाइल है, ये भी अलग मटेरियल है, टेम्पर लकड़ी है, अलग मटेरियल है, कंपर अलग है, सैंड पाइल्स भी, ये भी मटेरियल के लिहाज से है, ठीक है। इसमें एक पाइल है सिंकिंग पाइल। सिंकिंग पाइल अ मेथड ऑफ सिंकिंग अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शाफ्ट जो कि 20 से 30 फुट का होता है, 6.1 मीटर से 9.1 मीटर तक। इस शाफ्ट को हम क्या करते हैं, ऑफ सैंड और मड एट द सरफेस। तो ये एक मट्टी का या सैंड का, रेत का या मट्टी का जो है हमारे पास 20 से 30 फुट शाफ्ट होता है, ठीक है, जो कि सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंक करते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ग्रेटर डेप्थ, इसको हम ग्रेटर डेप्थ के लिए यूज़ नहीं करते। एज ईच रिंग ऑफ पाइल्स रिड्यूसेस द इनसाइड डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट, जो कि हर रिंग जो हमारे पास पाइल्स का होता है वो अपने
डायमेंशंस को, शाफ्ट के डायमेंशंस को कम करता है, ठीक है। तो जितने भी इसमें रिंग्स होते हैं, लेटरल रिंग्स होते हैं, ठीक है, इस सिंकिंग पाइल्स में, तो वो अपने क्या करते हैं, रिड्यूस द इनसाइड डायमेंशन, जो अंदर डायमेंशन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। शाफ्ट के अंदर अगर इसको हम ज़्यादा देर तक क्या करें, ज़्यादा डेप्थ तक हम जो है इसको डालें, लेकिन इसके डायमेंशन रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसको वजह से इसको ज़्यादातर डेप्थ में यूज़ नहीं करते। कितने डेप्थ में इसको यूज़ करें, कमेंट बॉक्स में अगर आप जीनियस हो। तो ये सिंकिंग पाइल्स होता है, इसमें हम ये शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट को हम क्या करें, सिंक करते हैं, ठीक है। तो दैट्स मीन सॉर्ट ऑफ सिंकिंग पाइल्स। ये भी एक शाफ्ट है, ठीक है, ये हमने बोर किया होता है, ठीक है, ये शाफ्ट बोरिंग है, ठीक है। ये भी सिंकिंग पाइल्स की टाइप है, ठीक है, ये सिंकिंग पाइल्स है, ठीक है। ये तो जस्ट एक खाली बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर लोड स्ट्रक्चर हो उसके फिर वो पाइल कैप पे डालता है, पाइल कैप के बाद वो ट्रांसफ़र होता है पाइल्स पे, ठीक है। तो हमारे पास सॉइल की एक लोअर डेंसिटी होती है, एक मीडियम डेंसिटी होती है, एक हाई डेंसिटी होती है, तो एक नॉर्मल तरीका है जनरली, ठीक है। ये भी सिंकिंग पाइल है, ये पावर चाइना का फ्यूजन इलेक्ट्रिक पावर इंजीनियरिंग कंपनी का है, ठीक है, ये भी सिंकिंग पाइल है, ये भी सिंकिंग पाइल है, ठीक है। इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ सिंकिंग पाइल, ठीक है। पानी कहते हैं इसको ड्रिवन किया होता है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी सिंकिंग पाइल्स है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो होल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म होता है, फिर ये मेरे पास सी लेवल है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर से हम ड्राइविंग करते हैं, इसको अंदर डालते हैं, फिर ये सी बेड है। तो ये सिंकिंग जो पाइल्स है, ये उसकी कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी है, ठीक है।